Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the second chapter, the end of bipolarity, and under this chapter, we will be discussing all the process of disintegration of USSR, the causes, the main events, and then the consequences. And after that, shock therapy that will be discussed under this chapter, and up to now we have discussed about this features of Soviet system. What were the features of Soviet system? And when we were discussing features, there were many features which were very positive features, like in the Soviet system there was provision for fulfillment of basic needs of all the people. Everything was under the control of the state, and that is why there was no scope for any kind of inequality in the society. Unemployment was not there. Then all the needs of the people were fulfilled. So all these things were very positive. But we have also started a discussion regarding this, that under this system, what we find that if we consider the relationship between the state and the individual, the state is more powerful than the individual under this system. And this power of a state is actually used by the government. And this power of government is actually used by the bureaucrats. So what happened in practically implementing this principle of socialism? What happened? That bureaucracy became very powerful in the Soviet system. The Soviet system became very bureaucratic and authoritarian, because the state was very much powerful. There was complete lack of democracy, lack of freedom to the people. People were not having this freedom of expression, freedom of speech. So this kind of situation was highly dissatisfactory for the people, because it is not possible to suppress the feeling of freedom of the people for a long time. So what we find that the Soviet system, actually the whole system became static. There was lack of dynamism. It was not dynamic, it was static. If we see the political system, why it became static? What was the most important defect in the political system of the Soviet system? The most important defect was having a single party system. Because of one party system, there was total lack of accountability on the part of the government. The Communist Party was all in all. It was the most powerful organization in the country. The government was totally unaccountable, because there was no fear of losing the power, because opposition party was not there. तो इस कारण से क्या हुआ, the government became unaccountable, and we see that the aspirations of the people were not fulfilled. People were highly dissatisfied under this system. Not only this, we see that as we know, we have discussed about it, the Soviet Union was USSR को अगर हम देखें, जो कि अब रसिया है, still Russia is the biggest country area wise. So USSR was the biggest country at that time area wise, and diversity was there, very much diversity was there, cultural diversity, linguistic diversity was there. But what we find that because of this authoritarian rule, the government was not ready to recognize the need of the people, recognize the
need of the people regarding their cultural requirements, जो भी उनके कल्चरल एस्पेक्ट है उसको वो अपने हिसाब से मैनेज करे. लिंग्विस्टिक मैटर्स को वो अपने हिसाब से मैनेज करे. दीज फ्रीडम वर ऑल्सो नॉट गिवन टू द पीपल. And moreover, there was one more problem, and that is the dominance of Russia. Because we see that USSR was made up of 15 republics, and in these 15 republics, Russia was the most powerful, and area-wise, it was the biggest new republic. So Russia was playing a very dominant role in USSR, though it was just one among the 15 republics, but it was playing a very dominant role. And this role was not only in the political aspect. The Russian language, the Russian culture, everything was imposed on the people belonging to different republics. तो इस तरह से रसिया का जो डोमिनेंस था, दैट वाज आल्सो कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल. दे वांटेड टू have their own freedom in matters of culture, in matters of language, but we see that the Russian language, the Russian culture was imposed on all the people of the USSR. So this was one of the biggest loophole in the system of USSR. And now we see there was another problem, because these two superpowers were there, US and USSR, and there was conflict and competition between these two superpowers. There was the logic of deterrence was working between them, and that is why we see that arms race was started in both the superpowers. Both the superpowers were trying to arm themselves as much as possible, so that they can become so much so powerful that the other side cannot think of attacking on them, है ना. तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो आर्म्स रेस हो रहा था, इसमें सोवियत यूनियन जो थी उसको यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज ऑफ वन थिंग वाज देयर, टेक्नोलॉजी, अबाउट विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि ये जो अलूफनेस को अडॉप्ट करते हैं, सोशलिस्ट जो सिस्टम होता है उसके अंदर अलूफनेस होता है. they don't keep relationship with the western world, है ना. तो इस अलूफनेस के कारण क्या हो गया कि टेक्नोलॉजिकल गैप आ गया बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर, है ना. और इस टेक्नोलॉजिकल गैप के कारण क्या हुआ कि द सोवियत यूनियन स्टार्टेड टू लैग बिहाइंड, पीछे पड़ने लगा, ठीक है. और टेक्नोलॉजी के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, पावर है, इन सब सेक्टर्स में भी सोवियत यूनियन जो है वो पीछे होने लगा. ओके. और इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से के रिगार्डिंग, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो है 1979 में जो अफगानिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन करता है सोवियत यूनियन. मिलिट्री इंटरवेंशन बाय यूएसएसआर एंड एक्चुअली वी कैन से ये जो 1979 का अफगानिस्तान का मिलिट्री इंटरवेंशन था सोवियत यूनियन का, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ यूएसएसआर. दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर. क्योंकि इसके कारण क्या हुआ कि सोवियत सिस्टम जो पहले से ही, हम कहेंगे कि अगर यूएस और यूएसएसआर को हम कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा लगता था कि दोनों सेम पोजीशन पे, बट एक्चुअली
यूएसएसआर पीछे हो रहा था टेक्नोलॉजी के हिसाब से, देन लोगों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इन सब रीजन से ऐसे ही सोवियत यूनियन कुछ पीछे तो था ही, बट ये जो इंटरवेंशन होता है इसके कारण इस पे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस फाइनेंशियल बर्डन को वो नहीं संभाल पाता। इट वॉज नॉट एबल टू मैनेज दिस फाइनेंशियल बर्डन, और धीरे धीरे ये देखा जाता है कि धीरे धीरे वो बिल्कुल ही पीछे होता जाता है। ये कंडीशन हो जाती है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। इकोनॉमी में आगे बढ़ने का जो काम होता है वो बिल्कुल ही रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, स्टैग्नेंसी आ जाती है, और इसी के साथ साथ जो कंज्यूमर गुड्स थे उनका शॉर्टेज तक स्टार्टिंग हो जाता है। यूएसएसआर में फूड इंपोर्ट तक करना पड़ जाता है यूएसएसआर को, इकोनॉमी की ये कंडीशन हो जाती है। और लेट 1970s आते आते ये पूरी तरह से इकोनॉमी जो है जिसको हम कहेंगे कि स्टैग्नेंट बन जाती है, एंड दैट बिकेम द रीजन फॉर दिस एंड ऑफ सोवियत यूनियन। तो अब ये हम सम अप करेंगे कि आखिर क्या लूप होल्स थे, क्या कमियां थी हमारे सोवियत यूनियन में। ठीक है, सोवियत सिस्टम के हमने फीचर्स देखे, और अब हम उसके लूप होल्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या लूप होल्स हैं? लूपहोल्स ऑफ सोवियत सिस्टम, फर्स्ट हमारा होगा कि द सिस्टम वाज ऑथोरिटेरियन and bureaucratic, okay, the system was authoritarian and bureaucratic. सेकेंड हम देखेंगे not able to fulfill the aspirations of the people, then dominance of Russia, dominance of Russia was there, then technological backwardness, and then stagnation in economy. Okay, and now we will see some efforts were done by the Russian leadership, the leadership in USSR, to improve the situation, and this was done by Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, he was the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union in the year 1985, and जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं सोवियत यूनियन के वही कम्युनिस्ट पार्टी के वही सोवियत यूनियन के लीडर होते हैं, उनको चलाने वाले जो मेन जिसके पास पावर होता है कंट्री का, वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ही होते हैं। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, एंड जब वो 1985 में यूएसएसआर के प्रीमियर के पोस्ट पे आते हैं तो ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम
लूप होल्स उन्हें नज़र आ रहे थे, प्रॉब्लम्स उन्हें समझ में आ रही थी कि कहाँ क्या दिक्कत है, और इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स स्टार्ट की। ठीक है, ये इनको पता था कि जिस तरह से जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी टेक्नोलॉजिकल जो बैकवर्डनेस आ रहा था, जो वेस्ट में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था, यूएसएसआर वाज नॉट अवेयर of all those advancement. USSR was not able to take advantage of all those advancement. तो ये समझ में आया कि जो यूएसएसआर है उसको जो कुछ भी वेस्ट में इन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, उससे उसको वाकिफ होना बहुत जरूरी है। यूएसएसआर मस्ट बी अवेयर ऑफ द information and technological revolutions which were taking place in western countries. तो इसके लिए क्या हुआ कि गोर्बाचेव जो थे उन्होंने वेस्ट के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट किया, जो कि अभी तक अप टू नाउ व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ यूएसएसआर, पॉलिसी यही थी कि अलूफ रहना है, हमें वेस्टर्न कंट्रीज से कोई रिलेशन नहीं रखना है, एंड दैट वाज द मेन रीजन फॉर दिस बैकवर्डनेस। और ये बैकवर्डनेस के कारण इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रहा था, इकोनॉमी पीछे जा रही थी, जैसे हमने देखा कंज्यूमर गुड्स तक उनके सॉर्ट कर गए, फूड इंपोर्ट्स करने पड़ रहे, हर तरफ वो पीछे जा रहा था। तो दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इट वाज रियलाइज्ड बाय Gorbachev, and accordingly Gorbachev started to normalize the relation of USSR with the western countries. Okay, and साथ ही साथ उन्होंने डेमोक्रेटाइज करने का भी फैसला लिया कि डेमोक्रेसी जो कि अभी तक पूरी तरह से कंप्लीटली इट वाज लैकिंग इन सोवियत यूनियन, तो डेमोक्रेटाइजेशन का भी उन्होंने डिसीजन लिया। एंड नॉट ओनली दिस, ही हैज ऑल्सो मेड सम चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। सोवियत यूनियन में कुछ उन्होंने ऐसे चेंजेस भी लाए, कुछ नए कुछ पॉलिसीज लाए जिसको हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट कहते हैं। तो ये क्या था इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये लाया इन्होंने। एक तरह से हम कहें तो क्या किया, जो क्लोज्ड थी ना, जो इकोनॉमी क्लोज्ड थी, जो सोसाइटी तो अपने आप क्लोज हो जाती है, अगर पॉलिटिक्स हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्लोज्ड होगा तो उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो यही होगा कि सोसाइटी भी हमारी क्लोज्ड हो जाएगी। तो इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, कुछ नए पॉलिसीज लाए जिसको हम ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका कह रहे हैं। तो इन सब से क्या हुआ, ओपननेस को इन्होंने लाया, जो क्लोज्ड था उसको खोलना शुरू किया। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो इन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंगली जो बीमारी थी, कहा जाए अगर देखा जाए तो सोवियत सिस्टम की जो बीमारी थी उस बीमारी को इन्होंने पकड़ लिया था कि क्या बीमारी है। बीमारी इसका क्लोज होना ही था, जो कि इसको हर तरफ से पीछे ले जा रहा था, स्टैग्नेशन आ गया था हर जगह। तो इसका रीजन था क्लोज्ड होना। तो इसको क्लोज्ड नहीं रखना है, इसको ओपन कर देना, यही डिसीजन लिया। तो इसका जो इन्होंने ओपन करने का डिसीजन लिया तो वो तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए था ना, बट एक्चुअली क्या हुआ कि इन्होंने जो डिसीजन लिया, शायद उस डिसीजन ने डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम किया। डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को उसने फास्ट कर दिया, जिसको कि किसी ने नहीं सोचा था कि गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसका ये कंसिक्वेंसेस हो सकता है, बट ये कंसिक्वेंसेस हुआ, है ना। So we can see that the role of Gorbachev was very important in this process of disintegration. So the policy which was adopted by Mikhail Gorbachev he became General Secretary of Communist Party of USSR.
1985. And from that time only he started reforming the economic system, the political system. Everything was started to be reformed by Gorbachev, and in this regard two main policies were adopted. One was glasnost and another was perestroika. These are Russian terms, है ना. पेरेस्ट्रोइका का मतलब हुआ रीस्ट्रक्चरिंग. एंड ग्लासनोस्ट इज ओपननेस. तो जो अभी तक बिल्कुल क्लोज्ड थी सोसाइटी, वो ओपन करना उन्होंने स्टार्ट किया. पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को. कैसे ओपन हुआ? एक तो उन्होंने वेस्ट के साथ रिलेशन को इम्प्रूव किया. जो अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा जाता था, उसको एंड किया गया. वेस्ट के साथ रिलेशन इम्प्रूव किया गया ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पर हो रहे हैं, हम भी उसका फायदा उठा सकें. ओके. एंड देन पेरेस्ट्रोइका, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स पूरी की पूरी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया गया. जिस स्ट्रक्चर पे हम चल रहे थे कि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, कहीं से भी कोई कैपिटल नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा कंट्री के अंदर, एवरीथिंग विल बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली. इन सब में चेंजेस लाना उन्होंने स्टार्ट किया. और इसी में हम ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने चीजें स्टार्ट की, उसका वही इम्पैक्ट जो था, एक्सपेक्टेड तो ये था कि इन्होंने जो रिफॉर्म्स लाया है, इन रिफॉर्म्स से हम सोवियत यूनियन को बचा सकेंगे. These reforms were aimed at saving the system, but actually these reforms started the process of disintegration of USSR. Because what we find कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइक जो लोगों के एस्पिरेशंस को सप्रेस करके रखा जा रहा था, नॉट ओनली इनसाइड द यूएसएसआर बट जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे. ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में भी कभी भी अगर लोगों के टाइप ऑफ रिवोल्ट हो रहे हैं कम्युनिस्ट रेजिम के अगेंस्ट, तो वहां पर मिलिट्री इंटरवेंशन करके वहां पर मिलिटारली उसको सप्रेस किया जाता था बाय द यूएसएसआर. लेकिन अभी क्या होता है, गोर्बाचेव के आने के बाद ईस्ट यूरोप की कंट्री जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. अपनी खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वही बात थी, एस्पिरेशंस को सप्रेस करके बहुत दिन नहीं रखा जा सकता है. बाय द यूज ऑफ पावर इसको हम बहुत दिन तक नहीं रख सकते. तो वहां पर पहले भी रिवोल्ट हुए थे. ऐसा नहीं है कि लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, लोगों ने टाइप ऑफ रिवोल्ट नहीं किया था. इसको रिवोल्ट नहीं कहेंगे, इसको प्रोटेस्ट कहेंगे. पहले भी होता था, बट पहले जब होता था तो यूएसएसआर बिल्कुल एक्टिव होकर के उसको दबा देता था. लेकिन अब जबकि गोर्बाचेव का टाइम है, तो हम क्या देखते हैं कि गोर्बाचेव ने कुछ भी इसको सप्रेस करने का एफर्ट नहीं किया. और जब सप्रेस करने का एफर्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वन बाय वन करके जो कम्युनिस्ट रेजिम थी सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज में, वो टूटनी स्टार्ट हो जाती है, खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, और उसमें गोर्बाचेव की तरफ से कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है. इसी समय में देखते हैं कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि which are very much important in order to understand the disintegration of the process of USSR. So first of all, the independence movement started in Lithuania in the year 1988. Lithuania जो कि एक ईस्ट यूरोप का एक कंट्री है, जिसको कि जो सोवियत ब्लॉक में था. ठीक है, बिल्कुल ही यूएसएसआर का बॉर्डरिंग कंट्रीज है ये. लिथुआनिया, देन एस्टोनिया, लातविया. ठीक है. तो सबसे पहले जहां पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, कम्युनिस्ट रेजिम के अगेंस्ट लोगों का जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, दैट वाज इन लिथुआनिया. in the year 1988. लिथुआनिया से ये आगे स्प्रेड करता है, एस्टोनिया और लातविया तक जाता है. अगर आप मैप देखेंगे, एस्टोनिया एंड लातविया, तो मैप अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल यूएसएसआर के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं.
और ये ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है जो कि सोवियत ब्लॉक में थे, जहां पर कम्युनिस्ट रेजिम था। ये यूएसएसआर के साथ वाले कंट्रीज थे। तो यहाँ पर क्या होता है, इन तीनों कंट्री को क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज बाल्टिक रिपब्लिक्स। इनको बाल्टिक रिपब्लिक कहते हैं। तो यहाँ पर जब स्टार्ट होता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो गोरबाचेव की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं होता है दबाने को, और फिर ये यहाँ से आगे स्प्रेड हो जाता है एस्टोनिया और लातविया जैसे कंट्रीज में। और उसी समय अगर हम आगे के डेवलपमेंट्स को देखें तो क्या होता है, ये 1988 का डेवलपमेंट है। एंड देन इन द ईयर 1989 व्हाट वाज डिक्लेयर्ड बाय गोरबाचेव। Gorbachev, Soviet Union जो है under the leadership of Gorbachev declares that Warsaw Pact members are free to decide their own future. वो अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए फ्री हैं। They are not compelled to be with the Soviet Union, with the Soviet bloc. वो चाहे तो हट सकते। जैसे ये जो मिलिट्री अलायंसेज होते थे उनमें क्या था कि एक बार अगर आप एक मिलिट्री अलायंस से जुड़ गए then you cannot join the other side, है ना। This was one of the most important feature of military alliances कि if you are a part of one of the alliances then you cannot become part of the another alliance। तो ये एकदम डिवीजन था, शार्प डिवीजन था। बट नाउ in the year 1989 it was declared that you can decide your own future। तुम्हें जो करना है, all the countries who are signatories of this Warsaw Pact are free to decide their own future। इसका मतलब क्या है कि हम आप पे कोई भी कंट्रोल नहीं रखना चाहते हैं। That was practically not possible by the for the USSR to do all these things। That is why it was started, है ना। और इसी समय इसी साल 1989 में ही अक्टूबर में ये डिसीजन आता है, ये डिक्लेयर किया जाता है बाय द सोवियत यूनियन कि आप वॉर्सो पैक्ट को छोड़ सकते हैं। और नवंबर 1989 में क्या होता है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, दैट वाज द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। जो बर्लिन का डिवीजन, बर्लिन के बीचों बीच जो वॉल थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में जो बटा हुआ था जर्मनी, दैट वाज द सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर। वो बताता था ईस्ट जर्मनी वॉज विद द सोवियत यूनियन, वेस्ट जर्मनी वॉज विद द यूएस। तो ये जो डिवीजन था ना, ये बता रहा था कोल्ड वॉर को। तो ये चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। बर्लिन वॉल का टूटना जो है, दैट वाज द काइंड ऑफ सिंबल ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, एंड ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ये चीजें जो है वो स्टार्ट प्रोसेस में आ गई थी। और इसी समय एक और बहुत ही मेजर डेवलपमेंट होता है, दैट इज इन February 1990। This was the most we can say radical step taken by Gorbachev। And what was that step? The step was that this single party system was abolished। Now the country can have multi-party system। गोरबाचेव जो थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के 72 इयर्स का जो उनका मोनोपोली था, जो सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ पिछले 72 सालों से चली आ रही थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और वो ये कहते हैं कि जो सोवियत की पार्लियामेंट है उसने ये परमिट कर दिया कि अब सोवियत यूनियन में मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यूएसएसआर में गोरबाचेव के आने के बाद डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ जो है वो कंट्री बढ़ जाती है। और इसे को हम कहेंगे कि दीज आर द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और फिर एक और बहुत ही मेजर डेवलपमेंट होता है मार्च 1990 का, एंड दैट इज कि जो लिथुआनिया थी बिकम द फर्स्ट ऑफ द 15 वो लिथुआनिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन जाती है। ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट होता है 1990 के मार्च का। ठीक है, तो इस तरह से जो चीजें हैं वो स्टार्ट होती हैं। डिसइंटीग्रेशन जो है वो धीरे धीरे करके यूएसएसआर टूटता जाता है। और टूटने के पीछे देयर वाज नॉट एनी
आउटर रीजन, जो रीजन था वो उसके अंदर ही मौजूद था, सिस्टम में ही इतनी खामियां थी, सिस्टम के अंदर ही इतने लूप होल्स थे कि उसको टूटने से कोई बचा नहीं सकता था। इट वॉज नॉट पॉसिबल। वो कोई बाहर का, ये नहीं कि यूएस के कारण कुछ ऐसा हुआ, नो, नथिंग वॉज देयर फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग वॉज इनसाइड। सब कुछ जो भी कमियां थी वो अंदर ही मौजूद थी, और उन कमियों के कारण ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। वी आर in the process. We will discuss the things in the next class.